Good morning to one and all present over here. Welcome to the orientation program on CUET 2022 for UG admission in University of Delhi, organized by Internal Quality Assurance Cell, Motilal Nehru College, Morning. To introduce and welcome our honorable speaker, Dr. Siddharth Rathore, I would like to call Dr. Yogesh Gupta, sir. Good morning, everyone. It is a great pleasure of IQAC Motilal Nehru College to welcome Dr. Siddharth Rathore, who is from Gargi College. He teaches economics there, to speak on a very relevant subject today, which is CUET 2022. As we are aware that new admission scheme has just started, not only in Delhi University, but entire country as far as central universities are concerned and some of the state universities are concerned. So students in general and others in particular, everyone is confused that, how to go about it, how to fill up forms, which subject to choose, how to opt domain subjects, who has to opt for general test, who has what is there to opt out. And when we will sit and start filling up the form, it is really very complicated. I have tried myself and I found certain fields to be very So I'm sorry, there was some technical error in the system. So how to resolve this confusion which we all are having, and I found one video of Dr. Siddharth, and I contacted him that please enlighten us, because he has digged in and he has done some great research on the entire issue of CUET. So he will be explaining for all of us that how we should go about it. I'm sure this will be helpful to all of us, whosoever has joined, and we can pass the information to others. So all of us who have joined can be good ambassadors for others who are having some problems in filling up these forms. So without wasting further time, I would invite Dr. Siddharth to come with his presentation. There will be a question answer session followed by this presentation. But for that, I would request all the participants to write their questions in the chat box so that someone will moderate these questions. So please welcome Dr. Siddharth Rathore. Thank you very much, sir. So I will go bilingual in my entire session so that it's comprehensible to everyone. So let me just present my screen. I hope my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So let us start with the very basics of the CUET system. And what we will be talking about is what the CUET system is, what is the pattern of examination. We will also be talking about what are these optional papers or domain subjects, and what is the process of admissions, where I'll guide you about the concerns that usually parents have or students have while filling up the form. So there is something called domain 1, domain 2, domain 3, and languages. So this is a major problem that students are facing right now.
and also to address some of your queries if you have faced any while filling up the form. So let us start with the structure of CUET exam. Now, the initial part will be just the CUET examination structure. It will not be specific to Delhi University, and then we will come to the Delhi University specification. So first of all, when we start, तो हमारा सबसे पहले एक language का paper है. Again, so we have these languages, 13 languages in section 1A, and we have 20 languages in section 1B. Now, the pattern of the examination is that you will have 40 questions to be attempted out of 50 questions. So आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, ये 45 मिनट्स का पेपर होगा, एंड उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. बट डू रिमेंबर दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन, एंड आई विल टेल यू अबाउट द मार्किंग ऑफ दिस. बट इफ यू वांट टू नोट इट डाउन राइट नाउ, every question will have 5 marks. So 40 questions need to be attempted into 5 marks. 200 marks will be the weightage of each particular language test. And what all will be included? It will have reading comprehension, factual, literary, and narrative kind of questions. I will also show you the questions that have appeared in previous year as well. So this is not the first time that this examination is being held. A similar pattern of examination was also held last year, which was called as CUCET. So वो जो उसके जो जनरल टेस्ट था उसका पैटर्न हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. आई ऑल्सो शेयर इट विद सर जस्ट इन केस एनीवन रिक्वायर्ड. तो उससे मिलता जुलता जो पैटर्न है वो आपको मिलेगा इस साल भी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट you have domain subjects. Now, domain subjects are basically your specialization subjects of class 12, and what subjects you should take up will be dependent on whether the university norms are accepting that or not. To give you an example, Delhi University कहता है कि आप डोमेन सब्जेक्ट वही ले सकते हो जो आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट्स हैं. तो अगर आपने क्लास 12 में फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है तो आप इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में नहीं ले सकते. हर यूनिवर्सिटी का अपना नाम है. Today I'll show you the BOI of Delhi University. I'll also show you the BOI Ambedkar University. तो आपको अगर मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करना, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आपको मल्टीपल ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ने होंगे टू चेक कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है. एंड ये जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे इसमें आप मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं गिवन यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स. अगेन आपको यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स देखने होंगे. And each particular domain subject will be having 50 questions, out of which 40 questions needs to be attempted. And her question 5 marks का होगा, तो 5 into 40, 200 marks का आपका हर domain paper होगा, MCQ based होगा, and 45 minutes for each domain. Now, NTA says that this particular examination will be on class 12 pattern, but कई जैसे मैंने पेरेंट्स से जिनसे बात करी है कई जगहों पे सिलेबस जो है कई बार ओवरलैप कर रहा है 11th and 12th का, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अ CBSE पैटर्न. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CBSE, ICSE and state board. So it's an amalgamation of all these patterns. So therefore you might need to do a little bit of extra with respect to your domain subject. So I'll show you आपको domain subject से syllabus कहाँ मिल जाएंगे, and you need to follow that rigorously. Then the third aspect is the general test. अब हर यूनिवर्सिटी का अपना कुछ नॉर्म है जनरल टेस्ट का. फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि इफ वी हैव टू टेक BBE, BBA, FIA, और इफ यू वांट टू टेक अप BMS, तो अगर ये 3 कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आपके लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है. तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक नॉर्म है जो उन्होंने सेट किया हुआ है, जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं और क्या उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है. तो यू नीड टू फॉलो दैट एज वेल. अब यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आएंगे जनरल टेस्ट के अंदर, और ये मॉर्निंग स्लॉट में होगा. आई टेल यू अबाउट दी स्लॉट्स एज वेल. 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 60 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड. एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, एंड देयरफॉर 60 into 5, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा. तो इसका वेटेज जो है थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या क्या होगा, इसके अंदर जनरल GK होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिक एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा. तो बेसिकली अ मिनी कैट पेपर जो होता है उस तरीके का एग्जामिनेशन है, along with a little bit of GK and current affairs.
सो यूजुअली जो मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, वो सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेन करता हूँ, तो एक सीसैट का पेपर होता है और एक प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसका कॉम्बिनेशन टाइप एक पेपर बनाया है यहाँ पर। एंड इसके लिए शायद से आपको एक्सटर्नल, शायद से आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको पिछले कुछ सालों के एक DU जैक करके पेपर होता था, उसका आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। सो यहाँ पर इट विल नॉट बी अ टफ एग्जामिनेशन इन द सेंस कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट आपको वो 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। वहां पर आपको वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोल्यूशन देख के, आप ऑप्शन देख के आप पास कर पाओ, और अगर आपको चीज नहीं आ रही तो आप उसको छोड़ के आगे चलो। तो इस ये जो है, ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी पेपर हो सकता है फॉर स्टूडेंट्स इफ दे ऑप्ट फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। देन कमिंग टू आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ शुड यू गो अबाउट फिलिंग अप द फॉर्म। So for filling up the form, the first step that you need to do is कि सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, आपके पास वहाँ 45 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट गिवन है NTA की वेबसाइट पे। आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप देखेंगे कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज चाहिए, और अगर आपको आइडिया लगे, या फिर आपको सपोज आपको चाहिए कि मुझे इको ऑनर्स ही चाहिए, मुझे इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, या मुझे बीकॉम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो आप चेक करिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स ऑफर होता है, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स वो होता है, ऑफर होता है। तो उसकी एक लिस्ट बनाइए। वंस यू हैव मेड दैट लिस्ट की यूनिवर्सिटीज का लिस्ट और कोर्स का, दूसरा कोर्स का लिस्ट एक बार आप चूज कर लेंगे, तो हर यूनिवर्सिटी का, हर कोर्स का एक अलग रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के इको ऑनर्स का एक रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि आपको इंग्लिश, आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स कंपल्सरी, और 2 डोमेन और आप चूज कर सकते हैं। वेराज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहता है कि हमें सिर्फ 3 डोमेन चाहिए, आप वो 3 डोमेन के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक नॉर्म हो सकता है, तो आपको वो नॉर्म का एक लिस्ट बनाना होगा कि अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स का क्या लिस्ट, क्या वो है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्या कहते हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का क्या है, सिमिलरली साउथ की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या है। तो इस तरीके से आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड मल्टीपल कोर्सेज। और यहाँ पर आई विल गिव एन एम्फेसिस ऑन अप्लाइंग टू मेनी यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप दिल्ली, क्योंकि आई एम वन ऑफ द कन्वीनर्स ऑफ एडमिशन एट गार्गी, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि कितने हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। यूजुअली हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती थी वो 2.5 लाख एप्लीकेशंस आती थी यूनिवर्सिटी में, बट 2020 वाज द ईयर व्हेन वी सॉ 2021 वाज द ईयर व्हेन वी सॉ सॉरी 2020 में हमने देखा 4.5 लाख एप्लीकेशंस आई। और इस बार क्योंकि अब ये कॉमन एंट्रेंस हो गया थ्रू आउट द कंट्री, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड, जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है 10 लाख है, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी होंगे जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो इस तरीके के एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी प्रेप्ड अप हैं। तो और उनके लिए जो बैकअप ऑप्शन होगा, वो JEE अगर नहीं हुआ तो उनके लिए वो बैकअप ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीमियर कोर्सेज होगा। So you need to diversify your portfolio in the sense कि आप multiple courses और multiple universities में apply करके चलिए, क्योंकि फीस तो anyways आपकी डोमेन सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यूजुअली मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट मत कीजिए, आप अपने ऑप्शंस ओपन करके रखिए। बाद में जब आपके पास अच्छा स्कोर आ जाएगा, अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, तब आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। बट फॉर नाउ डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, hedge your risk. Then the third step is to the third step is there's some background noise that I'm getting. Hello. Yeah. So then the third thing is eligibility. अब हर कोर्स की अपनी एक एलिजिबिलिटी, हर कोर्स और यूनिवर्सिटी की अपनी एक एलिजिबिलिटी नॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आप वही डोमेन ले सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स लेना जरूरी है। सिमिलरली आपको बाकी सारी एलिजिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी टू सी कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा NTA में अपना स्कोर कर दिया, बट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपके पास मैथ्स नहीं थी, बट आपके NTA में 100% आ गया, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। तो आपको ये केयरफुली चेक करना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। एंड लास्टली यू नीड टू चेक कि टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। एलिजिबिलिटी इज जस्ट मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी, बट उसके अलावा टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे BBE के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लैंग्वेज भी देना है, आपको क्या कहते हैं ये भी देना है, क्या कहते हैं मैथमेटिक्स का पेपर भी देना है, और साथ में आपको जनरल टेस्ट भी देना है। तो हर कोर्स का कुछ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट हो सकता है।
I'll give you examples of BCom, BA program, BCom program as well, जहाँ पर एलिजिबिलिटी के कई कई तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हो. तो यू नीड टू चेक कि कौन कौन से एलिजिबल तरीके हो सकते हैं और कैसे आप डोमेन्स लें कि आपके पास मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बेस्ट स्कोर ही दिया जाएगा. सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. नाउ कॉम्बिनेशन क्या क्या है सीयूईटी के अंदर. सीयूईटी के अंदर कॉम्बिनेशन है, या तो आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो, 6 डोमेन ले सकते हो और एक जनरल टेस्ट, तो टोटल आप 9 पेपर्स एट मैक्स ले सकते हो, या फिर 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो आप, और वो जो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपने ली है वो इन ल्यू ऑफ डोमेन पेपर ली है. तो अगर आप 3 लैंग्वेज पेपर ले रहे हो तो आप सिर्फ 5 डोमेन पेपर्स ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट एट मैक्सिमम एंड 9 पेपर. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन आप एक भी पेपर दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाह रहे हो तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए, तो आप सिर्फ जनरल टेस्ट दे दीजिए. बट अगेन आपको देने काफी सारे टेस्ट चाहिए, सो दैट आपका जो ऑप्शंस हैं वो खुले रहें और आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं. एंड आई टेल यू ऑल्सो दैट अंडर द करंट सिस्टम एक साइंस स्टूडेंट से, पीसीएम वाला जो स्टूडेंट है उसके पास आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं, बिकॉज a PCM student is almost eligible in all the courses in the entire at least दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी. तो यहाँ पर भी एक साइंस स्टूडेंट के पास काफी एडवांटेज. नाउ कमिंग टू योर नॉर्म्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं. ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स में बोलते हैं हम कि हमने सेक्शन 1 के अंदर सारी लैंग्वेजेस डाली हुई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में हमें एक लैंग्वेज चूज करना मैंडेटरी. एनटीए में जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लेना, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हमें एक लैंग्वेज आपको चूज करनी ही पड़ेगी. उसके ऊपर आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो अगर और अपने क्लास 12 में पढ़ी हुई है तो आप चूज कर सकते हैं. So you can take that, and the norm is the same कि 50 questions होंगे, out of which 40 questions need to be attempted and 45 minutes for each particular paper, each particular language. डोमेन सब्जेक्ट के साथ में, डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पर 27 सब्जेक्ट लिस्टेड हैं, बट यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई है यहाँ पर लिस्ट B1 और B2 के टर्म्स में की गई है. आई शो यू दिस लिस्ट B1 एंड B2 और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे B1 के अंदर हैं, एंड जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो यूजुअली B2 के अंदर दिए गए, और उसके एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसमें आप चूज कर सकते हो. सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में सिर्फ वही डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, एंड इन सबके सिलेबस ऑलरेडी एनटीए की वेबसाइट पे. आई विल शो यू दिस द लिंक फॉर ऑल दोस सिलेबसेस एज वेल. Then 45 minutes for each particular domain subject, and it will be an MCQ based examination. And then general test as I told you कि it's a 60-minute examination. जरूरी नहीं है कि कोर्सेज के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कोर्सेज के अलावा किसी भी कोर्स में मैंडेटरी नहीं है, और दो कोर्सेज में ऑप्शनल है. 3 कोर्सेज जो जिसमें मैंडेटरी है वो है BBE, FIA एंड BMS. इन 3 कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, और ऑप्शनल है बीकॉम प्रोग्राम के लिए और बीए प्रोग्राम. विल कम टू दैट. देन कमिंग टू लैंग्वेजेस अगेन, कि आपके पास एक लैंग्वेज कंपल्सरी और मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस. हर डोमेन की प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है तो आप हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे एंड देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के अंदर जाना चाहते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो PCM है, प्लस इंग्लिश में आपका या लैंग्वेज में आपके 30% मार्क्स होने चाहिए. बट अगर आप बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए उसमें PCB हो जाता है. तो हर पर्टिकुलर प्रोग्राम की एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, एंड यू नीड टू केयरफुली चूज कि आप जो आपके इंटरेस्ट ऑफ कोर्सेज हैं उसमें आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है, और उसी हिसाब से आप डोमेन डालेंगे वहां पर. आप सपोज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते थे या केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते थे और आपने फिजिक्स ही नहीं लिया अपने डोमेन के अंदर, तो आप उस कोर्स में एलिजिबल ही नहीं रह गए. एंड इसीलिए मैं यूजुअली पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि आप डोमेन्स, अगर आपने ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप अपने सारे डोमेन्स डाल दीजिए, सो दैट कि उनमें से जो बेस्ट लिया जाएगा, जो उनमें बेस्ट स्कोर होगा वो लिया जाएगा. तो इट विल बी, जो अभी बाय द वे ये आपके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में नहीं है, बट डीन ऑफ एग्जामिनेशन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपके बेस्ट ऑफ 4 लिया जाएगा. बेस्ट ऑफ 4 कैसे लिया जाएगा? 1 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज प्लस द 3 बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट.
जिस जिस तरीके से पिछले साल तक हमारा एडमिशन हुआ था तो हम बेस्ट ऑफ 4 लेते थे, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हुआ जाएगा, बट उसको थोड़ा ब्लू एंड ब्लैक में भी आना थोड़ा सा बाकी है। व्हाट आई एम स्पीकिंग इज फ्रॉम दी एडमिशन, डीन ऑफ एडमिशन का जो इंटरव्यू उनका इंडियन एक्सप्रेस में भी था एंड क्विंट में भी था। Then compulsory for general test is compulsory for BB, BBA, BFIA, and BMS, and optional for BA program and BCom program in case of Delhi University. And the maximum amount of papers are 9 papers. Then coming to one of the issues जो बहुत सारे पेरेंट्स को इशू फेस हो रहा है, वो हो रहा है कि आपका ये शेड्यूल क्या है और आपको ये शेड्यूल दोनों देने हैं या नहीं देने हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको दोनों शिफ्ट में पेपर देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेजर कोर्सेज में आपको 3 डोमेन लेने हैं। मेजर कोर्सेज के अंदर आपको 3 डोमेन लेने हैं, और 3 डोमेन तभी पॉसिबल हैं अगर आपके पास मॉर्निंग में 2 डोमेन है और इवनिंग में आपके आफ्टरनून शिफ्ट में आपके पास 1 डोमेन है। लेट्स चेक। मॉर्निंग शिफ्ट में जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आता है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 का जो 200 मार्क्स का पेपर है 45 मिनट्स का, उसको आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट विल बी इंग्लिश। देन उसके बाद वो आपसे डोमेन 2 एंड डोमेन 3 पूछता है। तो वहां पर आप अपने बेस्ट 2 डोमेन्स या जैसे भी आपको प्लान आउट करना है, आप अपने 2 डोमेन्स डाल दीजिए। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स ईच का पेपर होगा एंड 90 मिनट्स का होगा, क्योंकि 45 मिनट्स इनटू 2 डोमेन। And then the portal also asks you that do you want to give the general test? यूजुअली मैं पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको यस कीजिए, चाहे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट आपका हो सकता है ऑप्शन खुल जाए एंड हो सकता है जो आपने जनरल आपने प्रिपेयर किया हुआ हो उसके बेसिस पे आपके मार्क्स अच्छा हो। बट दिस पेपर वुड रिक्वायर certain amount of extra effort, and I know students are right now busy with their board exams. It's difficult, but बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये जो जनरल टेस्ट वाला जो रूट है वो ज्यादा इजी हो जाता है, स्पेशली स्टूडेंट जो क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें इसी तरीके का पेपर पूछा जाता है। तो जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो आपका 3 hours 15 minutes का होगा। नाउ हियर आई वांट टू पॉइंट आउट कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था उसमें 4 घंटे के स्लॉट्स बोले गए थे। सो आई एम गेसिंग इज कि आपका पहले और दूसरे ये लैंग्वेज और डोमेन के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा शायद से। दोनों डोमेन के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, और ये डोमेन और जनरल टेस्ट के बीच में 15 मिनट का गैप होगा। तो इस तरीके से 4 घंटे का प्रॉब्ली शिफ्ट होगा। आई एम अगेन दिस इज माय एस्टिमेट कि एक साथ 3 घंटे 15 मिनट का नहीं शायद से ना हो, क्योंकि 4 घंटे का कहीं पे मैंने पढ़ा था कि 4 घंटे के 2 शिफ्ट होंगे, तो दैट माइट बी द केस। देन उसके अलावा यू हैव, अब आपके पास जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास आएगा लैंग्वेजेस भरने का, कि लैंग्वेज 2 आप भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते। अगर आपने और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड और आपने क्लास 12 में ये लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है, तो आप सिंपल इसको कर देंगे कि NA नॉट एप्लीकेबल, और जो थर्ड लैंग्वेज है उसको भी आप कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अगर आपके पास आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी वो पढ़ी हुई है तो आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। लैंग्वेज 2 के अंदर आप फॉर एग्जांपल अपनी जर्मन पढ़ी हुई है तो आप जर्मन चूज कर लीजिए वहां पर, और आपने सपोज फ्रेंच भी पढ़ी हुई है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज 3 में कर लीजिए। बट अगर आपने इंग्लिश, जर्मन एंड फ्रेंच तीनों लैंग्वेजेस चूज करनी है तो आप सिर्फ 5 डोमेन चूज कर सकते हैं। 2 आपने यहाँ चूज कर लिए और मैक्सिमम 3 यहाँ चूज कर सकते हैं। देन कम्स, उसके बाद वो आपसे डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5 एंड डोमेन 6 के बारे में बात करेगा। यहाँ पर आपको अपनी डोमेन्स डालनी है जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, और हर डोमेन का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का। एंड यूजुअली जो जो मुझे पेरेंट्स जितने भी बात की है उनके केस में क्या है कि वो ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दे ही रहे हैं, और यहाँ पर उनका यूजुअली 90 मिनट का पेपर आ रहा है कि 2 डोमेन उन्होंने और चूज किए। तो आप उसको डोमेन 3 एंड डोमेन 4 में आप चूज कर लीजिए। एट मैक्स जो ड्यूरेशन जा सकता है वो इस पेपर का वो 3 hours 45 minutes का जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 90 मिनट्स एंड यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 2 hours and 15 minutes. So this is how your afternoon and morning shifts are linked. At the same point of time, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NTA के केस में यहाँ पर वी हैव नेगेटिव मार्किंग। सो गाइड योर वर्ड्स ही नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं मार्क कीजिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो आप उसको मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी उसमें पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है अपना एग्जामिनेशन पेपर। देन
Coming to languages in case of Delhi University, languages are compulsory for DU as we have discussed, and ये सारी languages हैं. Candidate must appear in one of the languages. In most cases, हमारे cases में ये English language होगा, but suppose किसी ने हिंदी पढ़ा हुआ है तो वो हिंदी language भी choose करें. Then the next thing is what are these domain subjects, and ये domain subjects किस दो parts में divided हैं. Let us see that as well. दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2. जो ट्रेडिशनल आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लिस्ट B1 में डाले गए हैं. ये आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट B1 के ट्रेडिशनल सब्जेक्ट. यूजुअली एक जो एडिशनल सब्जेक्ट जो मुझे दिखता है वो होम साइंस है, बट वो हमारे पिछले टाइम के एडमिशन से भी यही होता था कि लिस्ट दो लिस्ट होती थी, लिस्ट A एंड लिस्ट B टाइप होता था. तो वही वाले सारे सब्जेक्ट यहाँ पर B1 में डाले गए हैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में चूज कर सकते हैं लिस्ट B1 एंड B2 से. यूजुअली हर कोर्स में आपको बोला गया है कि आप डोमेन सब्जेक्ट लेंगे तो आप दो सब्जेक्ट B1 से ले सकते हैं और एक सब्जेक्ट B2 से ले सकते हैं. विल डिस्कस जब हम कोर्स वाइज कोर्स हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे. एंड ये आपके ट्रेडिशनल ये आपके नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट B2 के, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड देन फिजिकल एजुकेशन भी यहीं पे है, फाइन आर्ट्स भी यहीं पे है. तो इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्लास 12 में पढ़ा हुआ है तो यू कैन टेक दिस. कमिंग टू जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट में अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट BBE, BBA, FIA, BMS के केस में कंपल्सरी है एंड ऑप्शनल है फॉर BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम. Now let's get into program specific eligibility. Let us go into humanities का जो CUET program specific eligibilities है. Usually ये वो programs हैं जहाँ पर बहुत सारे students, a lot of students my experience go for civil services in combination के साथ, या फिर psychology में अगर उनको आगे इंटरेस्ट है. बट मेजोरिटी जो मुझे स्टूडेंट्स अभी तक इतने सालों में जो मिले हैं वो ये स्टूडेंट्स जो है वो काफी सारे सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं. तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? इनकी एलिजिबिलिटी साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी इज दैट यू शुड हैव वन लैंग्वेज. आपको चूज करना ही करना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी है. डोमेन सब्जेक्ट में आप लिस्ट B1 से आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर लिस्ट B1 से आप 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और एक सब्जेक्ट B2 से. रिमेंबर दिस इज फॉर दीज कॉम्बिनेशंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नीचे. आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन जस्ट प्रॉम्प्ट मी अप एंड आई विल एड्रेस दीज क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. एंड देन डोमेन जो आपका जनरल टेस्ट है इन सब्जेक्ट के लिए वो कंपल्सरी नहीं है. और आपकी एलिजिबिलिटी कैसी होगी? आपकी एलिजिबिलिटी बेस्ड होगी ऑन द मेरिट ऑन 4 सब्जेक्ट. तो अगर आपने 6 डोमेन भी लिए हुए हैं तो आपके बेस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे होगा. और यहाँ पर एनटीए क्या करेगा? एनटीए का काम सिर्फ है कि आपका रॉ स्कोर देना, कि आपका जितने भी आपके मार्क्स आपने पेपर अटेम्प्ट किया है वो आपका रॉ स्कोर देगा और उसको एक परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देगा. परसेंटाइल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड एक 1000 स्टूडेंट्स मान लो बैठे हुए हैं एंड जो टॉपर है उसका 100 परसेंटाइल है और सपोज किसी के 100 में से किसी के मार्क्स आए 95 एंड 95 से नीचे जो है 90 स्टूडेंट्स हैं और 95 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं. तो उस बच्चे का जो परसेंटाइल हो गया वो 90th परसेंटाइल हो गया. तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर आएगा वो परसेंटाइल के बेसिस पे होगा. एंड जो क्लैरिफिकेशन आएगा प्रॉब्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स वाइज जब काउंसलिंग होगी तो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको प्रॉब्ली बुलाया जाएगा. जितना ज्यादा आपका परसेंटाइल होगा उतना आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे. फॉर एग्जांपल जिसका 99 परसेंटाइल आया, 100 परसेंटाइल आया, 99 परसेंटाइल आया, उसको बुलाया जाएगा. सपोज इको ऑनर्स के कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि अच्छा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज आपको चाहिए आप वो कॉलेज ले सकते हैं. तो वो स्टूडेंट ले लेगा कि अच्छा मुझे सेंट स्टीफन चाहिए, ऐसा चाहिए. उसके बाद जो नीचे वाले डोमेन है उनके पास ऑप्शन है. तो इट विल बी प्रोबेबली, अगेन ये क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, सो बट लॉजिक यही बोलता है कि जैसा मेडिकल के अंदर आपका नीट के थ्रू आपका काउंसलिंग सेशंस होते हैं वैसे ही प्रॉब्ली इसमें होता है. जैसे नीट के अगर आप नीट के अंदर पीजी करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले जो लोग होते हैं वो पीडियाट्रिक्स ले लेते हैं या कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना चाहते हैं.
फिर उसके बाद एंड में फिर आपके पास बाकी सारे ऑप्शन आते हैं। तो उसी तरीके से प्रोबेबली यहाँ पर भी हमारे पास ये आएगा परसेंटाइल, और उस बेसिस पे आपकी काउंसलिंग। Then coming to the aspect of maths and economics, BSc maths and economics, BSc and maths and economics के केस के अंदर एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो ये है कि यहाँ पर आपको मैथ्स लेनी जरूरी है, और मैथ्स अगर आप तभी ले सकते होगे आप डोमेन सब्जेक्ट जब आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट एक लैंग्वेज की है। Maths is compulsory for both maths honors as well as eco honors in Delhi University. एंड देन जो बाकी दो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो आप या तो लिस्ट B1 से ले सकते हैं, या फिर एक B1 से और एक B2 से। एंड जनरल टेस्ट कंपल्सरी नहीं है, और आपका जो बेस्ट मेरिट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा आपका लैंग्वेज प्लस मैथ प्लस दो और डोमेन के लिए। जितने भी आपके बेस्ट डोमेन, जो आपके बेस्ट दो डोमेन है, उसको चूज किया जाए। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप इस कोर्स में, क्योंकि ये प्रीमियर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स तो काउंट होंगे ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका सबसे ज्यादा एम्फेसिस इन दो पेपर्स पे होना चाहिए जो कंपल्सरी है। Coming to program specific eligibility for BA program and BCom program, क्योंकि this is again a little different। अब इसमें दो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, BA प्रोग्राम के लिए या BCom प्रोग्राम के लिए। क्या ऑप्शंस आ जाते हैं? एक लैंग्वेज तो हमारा कंपल्सरी है ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, तीन सब्जेक्ट ले सकते हैं B1 से, या फिर दो डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एक फ्रॉम B2। ये जैसा हम पिछला देखते हैं वैसे ही वो कॉम्बिनेशन, और जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक तरीका है जाने का BA प्रोग्राम के। दिस इज वन रूट। द अदर रूट इज कि आप लैंग्वेज पेपर दीजिए और एक डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, ईदर फ्रॉम B1 और फ्रॉम B2, और जनरल टेस्ट लिखिए। ये एक छोटा शॉर्टकट है, बट ये शॉर्टकट तभी आप यूज कर पाएंगे अगर आपका जनरल टेस्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है। तो सपोज आपने ऑलरेडी, जैसे मैं पिछले जितने भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो क्लास 12 के जितने भी लोग थे, उन सबको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप इस पेपर को, ये पेपर आएगा ही आएगा, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है ये वाला पेपर, तो आप ये पेपर तो आप दीजिए, क्योंकि अगर आपका बेटर स्कोर आ रहा होगा जनरल स्टडीज के थ्रू, तो आपकी एलिजिबिलिटी ऊपर हो जाएगी और आपका मेरिट ऊपर हो जाएगा एज कम्पेयर टू रूट 1 से। और इसमें आपका मेरिट किस चीज पे बेस्ड होगा? इस पे आपका मेरिट बेस्ड होगा लैंग्वेज के ऊपर, एक डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपने लिया, और जो जनरल टेस्ट है। और जिनमें भी आपका स्कोर बेटर आ रहा होगा उस रूट से आप एडमिशन ले सकते हैं। कमिंग टू बीकॉम प्रोग्राम के केस में हमारा एक लैंग्वेज कंपल्सरी अगेन। देन बीकॉम प्रोग्राम के केस में हमारे पास या तो आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी या आपको अकाउंटेंसी लेनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए कंपल्सरी है, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, या तो आप उसके अलावा आप दो सब्जेक्ट ले सकते हैं लिस्ट B1 से। तो आपको 3 डोमेन तो लेने हैं, तो उन 3 डोमेन का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मैथ्स, अकाउंटेंसी और एक और सब्जेक्ट फ्रॉम B1, या फिर मैथ्स और इकोनॉमिक्स, या जो भी आपको B2 से और B1 से और जो सब्जेक्ट लेने वो, या फिर अकाउंटेंसी और B1 से और कोई 2 सब्जेक्ट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मैथ्स और अकाउंटेंसी ले लिया, एक सब्जेक्ट B1 से ले लिया और एक सब्जेक्ट B2 से ले लिया। तो ये आपके पास 2 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। बट रिमेंबर, मैथ्स से और अकाउंटेंसी में से एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड जनरल टेस्ट इज नॉट कंपल्सरी। एंड आपका जो मेरिट होगा वो ये 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें से मैथ्स और अकाउंटेंसी में से एक कंपल्सरी होगा उस मेरिट में। Then coming to program specific eligibility for BBE, BBA, FIA and BMS, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, एक प्रीमियर कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो यूजुअली स्टूडेंट्स आए करते हैं। तो उस केस के लिए आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपल्सरी है। डोमेन में सिर्फ आपको मैथ्स का एग्जाम देना है। तो अगर आपने मैथ्स ली हुई है क्लास 12 में, तो आप उसका एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि उससे आपके ऑप्शन बहुत सारे खुल जाएंगे। and आपका general test becomes compulsory for these 3 courses, and merit will be based on these 3 particular
सब्जेक्ट। कमिंग टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर साइंस सब्जेक्ट। नाउ साइंस सब्जेक्ट के केस में जो जो आपका रिक्वायरमेंट होगा आई विल टेक देम अप, बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू मैथमेटिक्स और यू वांट टू डू फिजिक्स और यू वांट टू डू केमिस्ट्री, तो उन केसेस में आपको पीसीएम बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको पीसीएम आपको देना बहुत जरूरी है। एंड लैंग्वेज जो आपका पेपर हो उसमें आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। तो लैंग्वेज में सिर्फ ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके लैंग्वेज के मार्क्स नहीं काउंट होंगे, बट आपके लैंग्वेज में 30% मार्क्स होने चाहिए। और सपोज आप बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका पीसीबी है और प्लस लैंग्वेज में आपके 30% मार्क्स होने चाहिए। उसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, बट आपको मिनिमम स्कोर जो है अपने उतना उसको चाहिए, आपको चाहिए। नाउ जहाँ पर आई गिव अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशन टू लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज दैट कि हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज योर करियर है। आप किस तरीके से आप अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप चूज करिए कि आपको करियर में करना क्या है। आपको करियर में जैसे बहुत सारे, जैसे अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के केस में मोर देन 60-70% स्टूडेंट्स आर दोस्त जो सिविल सर्विसेज के लिए बैठना चाहते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू सिट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आप अपना करियर गोल पहले ही सेट कीजिए कि अच्छा मुझे ये करना है या मुझे ये ऑप्शन चाहिए, और उस हिसाब से आई देन रेकमेंड कि आप जैसे मैं लोगों की जो काउंसलिंग करता हूँ, तो आप अपना किस तरीके से ग्रेजुएशन के टाइम से ही आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ I am now also teaching at Labasna. Labasna is the place where all your probationers, IAS probationers get their training. So this year when I went to Labasna to teach public policy to these young officers, a lot of them were very young officers. For example, एक IAS टॉपर की सिस्टर है जो 2016 में टॉप कर रही थी, टीना डाबी, और उसकी सिस्टर रिया डाबी। अब वो ग्रेजुएशन के टाइम से ही दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो किस तरीके से आपने मोल्ड किया अपना ग्रेजुएशन का कोर्स और किस तरीके से आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थ्रू योर ग्रेजुएशन कोर्सेज, वो आपको देखना होगा और उस तरीके से आपको कोर्स चूज करना होगा। क्योंकि यही 3 साल, ये 3 से 4 साल प्रॉब्ली, क्योंकि अब ये 4 साल का कोर्स होगा, इसके ड्यूरेशन में ही आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, आरबीआई हो या अदर बैंकिंग एग्जाम। सिमिलरली जब ये 4 ईयर प्रोग्राम जो आ रहा है, इसमें जो लास्ट ईयर होगा ये आपका रिसर्च का होगा, तो इसमें आप काफी अच्छा काम कर सकते हैं इन डेटा एनालिसिस एंड स्पेशली फ्रॉम पीपल कमिंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए। अब मास्टर्स आपका 1 साल का हो जाएगा उसके बाद, एंड अगर इफ यू वांट टू डू अ पीएचडी देन यू कैन जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ मास्टर्स यू कैन गो फॉर अ पीएचडी अब्रॉड। तो आपको वो 4th ईयर के अंदर आपको काफी टेक्निकल आपके पास वो होगा, क्या कहते हैं, पूरा साल ही इस चीज को कवर होगा कि आप डेजर्टेशन लिखें। एंड जो आपने इससे पहले के 3 साल है उसमें आपको अपना डेटा साइड पे, यूजुअली जो टेक्निकल साइड पे है उस पर आपको डेटा एंड आपको रिसर्च के पेपर्स आपको शुरू से पढ़ना शुरू कर देने चाहिए, सो दैट योर लाइफ इन रिसर्च बिकम्स मच मोर इजी। कॉर्पोरेट जॉब के लिए भी आपको अपने कोर्सेज देखने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन से कोर्सेज कॉर्पोरेट जॉब के लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल बीबीई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एफआईए, दीज आर टिपिकल कोर्सेज जो कॉर्पोरेट जॉब के लिए वेल सूटेड हैं। तो उस हिसाब से आप अपने करियर चॉइसेस के हिसाब से यू कैन थिंक अबाउट इट। एंड देन प्रोफेशनल कोर्सेज, a lot of students also go for law after your graduation, CA या फिर vocational कोई कोर्सेज करते हैं। तो आपको देखना है कि आप वैसा कोर्स कीजिए जिसके साथ ओवरलैप हो रहा हो आपके प्रोफेशनल चॉइसेस का। जैसे बीकॉम का काफी ज्यादा ओवरलैप सीएस, सीएफए एंड इनके साथ रहता है। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स करते हो, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स लॉ में बहुत अच्छा करते हैं यूजुअली। सो आपको ये कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ आप बेटर कर सकते हैं। And then the UGC has also come up with 2 simultaneous courses that you can do. तो वो अब एक नया ऑप्शन आपके पास खुल गया है जहाँ पर आप 2 कोर्सेज कर सकते हो, बट उसकी मोडालिटीज जब हम पढ़ेंगे कि अच्छा कौन कौन सी मोडालिटीज हैं, तब हमें बेटर समझ में आएगा कि अच्छा आप ये फिजिकल कोर्स मॉर्निंग में कर सकते हो और इवनिंग में कुछ और कोर्स कर सकते हो, या फिर एक ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे अंडर दिस न्यू पैटर्न। एंड आपके पास मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की जो बात हो रही है, जिसकी अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी, वो आपके पास खुल जाएंगे। तो एक काफी ओपन आर्किटेक्चर बन गया है अब एजुकेशन का इन दी कंट्री। देन अगेन आपको करियर गोल्स और आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है और आपको मैक्सिमाइज करना है अपना सीयूईटी डिपेंडिंग ऑन कि आपको कोर्स कौन सा करना है।
तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए अगर आपको जाना है तो आपको इकोनॉमिक्स या फिर आप पॉलिटिकल साइंस शुड बी द प्रेफर्ड ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। तो ये आपके बेटर ऑप्शंस हैं टू टेक इफ यू वांट टू क्रैक सिविल सर्विसेज। सिमिलरली आपके पास बाकी ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर career choices are, you can take those choices. Then apart from that, where you might need help is in counseling. काउंसलिंग में हेल्प क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आपको पता नहीं है एज एन आउटसाइडर कि कौन सा कॉलेज कैसा है। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक आप ही के कॉलेज के पास एक कॉलेज है आर्यभट्टा कॉलेज। आर्यभट्टा कॉलेज यूजली पीपल वुड से कि अच्छा ठीक ठाक कॉलेज है, बट अगर आप उधर की इकोनॉमिक्स की फैकल्टी देख लीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इज देयर इन आर्यभट्टा कॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि एवरी वन देयर इन द इकोनॉमिक्स फैकल्टी इज फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर। तो यूजुअली हम कई बार राइट ऑफ कर देते हैं कॉलेजेस को, बट हम ये नहीं देखते कि वहाँ पर एबिलिटी कौन कौन से कैसे कैसे। तो सिमिलरली अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट, अगर आप आपका वार्ड गर्ल चाइल्ड है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड गार्गी, बिकॉज यहाँ पर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विसेज सोसाइटी क्रिएट की है जिसका मैं कन्वीनर हूँ। एंड वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि स्टूडेंट्स को हम यहीं पे ट्रेन कर दें सिविल सर्विसेज की प्रेप के लिए और उनको कोचिंग की रिक्वायरमेंट ना हो। देन as some of you would be applying under ward quota, तो वहां पर आपको जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो आपका फर्स्ट या सेकंड पेज पे ऑप्शन आ रहा होगा वार्ड कोटा का। तो और आर यू टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो आपको उसको यस करके अपना डिटेल्स वहां पर डालना है टू बी एलिजिबल। एंड उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोबेबली विल कम आउट विद दिस नोटिफिकेशन, तो आपके पास वो वार्ड कोटा का आपके पास साइन फ्रॉम योर कॉलेज और योर प्रिंसिपल वो होना चाहिए। Apart from that, the other doors towards your dream college could be ECA and sports quota. स्पोर्ट्स कोटा का वहां पर ऑप्शन आता है, अगर आप फॉर्म देखेंगे और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं कि आपने स्पोर्ट्स कहाँ पर खेला है, कि आपने नेशनल लेवल पे जीता, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कि नेशनल खेला है, कि इंटर जोनल खेला है। तो आपको पर्टिकुलरली चूज करना है कि मैंने कहाँ पर खेला और मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट अवेलेबल है, और उस हिसाब से आप उसको चूज करेंगे। और यहाँ पर जो आपका वेटेज होगा, 75% वेटेज होगा वो सर्टिफिकेट ट्रायल्स एंड परफॉर्मेंस पे होगा, एंड 25% वेटेज होगा वो CUET पे होगा। बट रिमेंबर, बिना CUET के आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी हाल में। तो चाहे वार्ड कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो या ECA कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो, आपको वार्ड कोटा में तो आपको CUET तो देना ही मैंडेटरी है। And for any other guidance or consulting thing, especially for civil services, because that is my forte, I'll be more than happy to take any questions. And Baki, I will also like to show you a couple of things. Let me show you NTA की website. अगर आप ये आपकी CUET समर्थ.ac.in है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएंगे। अब आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको हर कोर्स का आपको सिलेबस मिल जाएगा। सो आई वुड रेकमेंड कि जो भी आप डोमेन्स ले रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने लगा दीजिए कि आप ईच एंड एवरी पॉइंट को आप कवर कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सेमेस्टर 2 क्लास 12 का दे रहे हैं, पर यहाँ पर जो सिलेबस है वो पूरा 11th एंड 12th, सॉरी पूरा 12th का होगा। तो आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे। यू कांट जस्ट फोकस ऑन द पार्ट दैट यू हैव डन रिसेंटली। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट दैट आप सारे सिलेबस पिक कर लीजिए PDF उनसे और उनका प्रिंट आउट निकाल कर। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, बट एक जो प्रॉब्लम यूजुअली आपको आएगी वो आएगी कि आप हर कोर्स का आपको हर यूनिवर्सिटी का आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देखना है। I also wanted to show you that. Let me show you. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, अभी अंबेडकर, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कैन यू सी कि यहाँ पर अगर आपको BBA करना है तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको सिर्फ जनरल टेस्ट। अगर आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में
तो वो कहता है कि 3 बेस्ट डोमेन्स होने चाहिए एंड मैथ पास होना चाहिए। उसमें उसने कोई रिक्वायरमेंट और कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर कुछ कुछ मेंशन है। देन अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है वहां से, तो वो कहते हैं सिर्फ जनरल टेस्ट है। तो अगर आपने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं है तो आप हिस्ट्री ऑनर्स आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कर ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैक्सिमाइज करने हैं अपने ऑप्शन। अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है तो एक लैंग्वेज चूज करना है और 3 डोमेन चूज करना है। तो आपको हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है। ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटीज है, ये आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम है, और ये आपका टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं टेस्टिंग रिक्वायरमेंट बोलता हूँ। सिमिलरली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप BOI देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोर्स का आपके पास यहाँ पर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ये BBA FIA है, 2 कॉलेजेस में जिसमें ऑफर होता है, एंड 1 फ्रॉम लिस्ट A मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET। तो आपके सारे कोर्सेज का BOI आपको पढ़ना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड देन आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। I would say that maximize your domain subject given all the requirements, and हो सकता है आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, बट आपने अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास 12 में नहीं पढ़ा, बट कोई और सब्जेक्ट आपने को आता है, तो आप वो भी भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में वो एलिजिबल हो जाए। तो आपको ये एलिजिबिलिटीज आपको चेक करनी पड़ेंगी हर कोर्स की, और हर यूनिवर्सिटी के आपको ये BOI जो है आपको हैंडी रखना पड़ेगा। What I will also do is I will combine a BOI of all courses and send it to Yogesh sir. Then he can probably circulate with all of you, so that आपके लिए ईज हो जाए कि अच्छा हमें एक जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, एंड उनका सिर्फ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी का एक डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने ये बनाया था, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था फॉर आवर कॉलेज, जिसके अंदर सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको स्क्रॉल कीजिए तो आपको सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। मैं एक डॉक्यूमेंट ऐसा बना दूंगा आपको बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड देन यू कैन इजीली कंपेयर कि अच्छा आप इस यूनिवर्सिटी के लिए है। और नाउ आई थिंक we can take a question. Let me take the last question. Sir, for BSc, is general test required? General test is not compulsory for BSc. बट अगेन आई वुड सजेस्ट दैट आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़िए। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी कह दे कि जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी के BSc अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो नहीं है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो नहीं है। लाइफ साइंसेज के लिए आप चेक कर सकते हैं कि लाइफ साइंसेज के लिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन। लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए लाइफ साइंसेज विद केमिस्ट्री, ये कहता है physics, mathematics or chemistry, and the candidate must obtain 30% score in one of the list A language. तो वो काउंट नहीं होगा लैंग्वेज, बट आपको मिनिमम 30% आपको। डेट ऑफ करेक्शन ऑफ फॉर्म आयुषी विल कम आफ्टर द नॉर्मल विंडो क्लोजेस। उसमें LTA ने बताया है कि दे विल गिव यू टाइम फॉर करेक्शन। अगर आपको कोई करेक्शन करना है, कोई डोमेन ऐड करना है, कोई probably कोई यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, तो शायद से उसमें आप ऐड कर सकते हो। But apart from that, certain basic details I don't think can be changed. For example, I don't think name and parents name, ये सारी चीजें I don't think can be changed. So ये एक probably एक चीज है जो चेंज नहीं हो सकती। Another question is, sir, I don't have any subjects in class 12 from list B2. ऐसा नहीं है कि आपके पास डोमेन सब्जेक्ट B2 में नहीं है तो डिसएडवांटेज है या किसी के पास एडवांटेज है। आई वुड से कि जो आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है क्लास 12 में, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग उनके लिए हो सकता है जो क्लास 11th और क्लास 12 में अभी आए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आई वुड रेकमेंड कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी अगर आप क्लास 12th में अभी आए हैं, क्लास 11th में, क्योंकि अभी से आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे और कितने में सब्जेक्ट लूं टू मैक्सिमाइज माय चांसेस इनटू से अ प्रीमियर कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर यही चीज प्रॉब्ली 6 महीने पहले आ गई होती या 1 साल पहले आ गई होती तो आई वुड हैव सजेस्टेड अ डिफरेंट प्लान टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वुड हैव आल्सो सजेस्टेड प्लान बी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स और इन टर्म्स ऑफ अदर एक्टिविटीज। तो आपको अगर आपको जिसको मैं बोलता हूँ आईवी लीग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईवी लीग मीन्स दी टॉप कॉलेजेस, तो अगर आपको उसके अंदर या टॉप कोर्सेज में अगर आपको चाहिए तो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा अगले साल से कि मैं किस किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज में जा सकता हूँ, बिकॉज द कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स विल बिकम इनॉर्मस। 10 लाख बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एंड
जिनका जिनका नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो जेई में नहीं क्लियर कर पा रहा, वो 100% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इकोनॉमिक्स में पहुंच जाएगा। एंड क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था इतने टाइम से, तो उसका स्कोर भी बहुत अच्छा हो। तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। यस, कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, पेपर इजी होने का ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ हाई नहीं होगी। कट ऑफ हो सकता है 100%, आपको 99% पे फिल होता है। तो आपको क्लास 12 पे भी फोकस करना है, एंड आपको ये भी देखना है कि और कौन से तरीकों से और कौन कौन से कॉम्बिनेशन से मैं अपना पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जा सकता हूँ। For BCom honors, Raghav's question, for BCom honors in DU, we can take maths as well as accountancy. Yes, you can take maths as well as accountancy, but one of them will have to be considered in the domain subject, in the merit subject. So in language के अलावा इन दोनों में से एक तो लेना ही पड़ेगा। वो सब आप, अगर आपके दोनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हो तो आप दोनों भी ले सकते हैं। Yes, Anand sir, maths is no longer compulsory for BCom honors. It's either maths or accountancy. ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ जस्ट इन केस आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। ये देखिए, ये एलिजिबिलिटी डीयू की है। इसमें क्या लिखा हुआ है? वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड एनी टू सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो दैट मीन्स या तो दोनों B1 से, या एक B1 से और एक B2 से, or one language plus accountancy and two language of which one should be from B1 or from or both can be from B1, or one from B1 and one from B2. I think Ayushi, you can add it when the correction window opens up. So I think that is when you can probably do that. अगर आपको add करना है, if NTA allows that, and I think NTA will allow it. सान्या क्वेश्चन, सर जनरल टेस्ट क्लियर करने के लिए कौन सी बुक होगी? बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए कंपल्सरी नहीं है सान्या, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जनरल टेस्ट के सच कोई अभी तक तो मुझे तो एटलीस्ट, मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर दिस। प्रॉब्ली आप जीके की कोई किताब देख सकते हैं, या ऑनलाइन कोई हेल्प आपके पास हो वो ले सकते हैं। I can suggest a particular teacher who helped me in my days. His name is Arun Sharma. He is a very good trainer for CAT examination, and they're also getting into CUET. आप मेरा रेफरेंस वहाँ ले लीजिए और एक हफ्ता क्लास अटेंड करके दीजिए। आप बोल दीजिएगा कि मेरे स्टूडेंट हैं, एंड और या आप मेरे रेफरेंस हैं, एंड ही टीचेस एट माइंड वर्क, ऑनलाइन है इनका, and then see if it helps you, just in case. अरुण शर्मा, इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं। मैथमेटिक्स की बुक तो बहुत अच्छी है। एक सब्जेक्ट जिससे मैं बहुत डरता था जिंदगी भर, वो था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड इनकी बुक से मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन हुआ। एंड आई थिंक एंड इज अ वेरी गुड मेंटोर राइट नाउ एज वेल। आई मीन वी कीप इन टच एज वेल, माइंड वर्क में है। बट अगेन जरूरी नहीं है आपको हर टीचर सूट करे। कई लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग सकता है, कई लोगों को खराब लग सकता है, तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि बिफोर गेटिंग इनटू एनी कोर्स, या कोई किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एनरोल कर रहे हैं, एक हफ्ते आप अटेंड करके देखिए कि आपको टीचर और पेडागोगी समझ में आ रही है, एंड देन यू शुड टेक इट। Then Padma Negi's question, since students are busy with boards, how do you prepare for CUET? Ma'am, this is a problem with almost everyone in the country. लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका वार्ड या आप जो है ज्यादा डिसएडवांटेज में एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, एंड इन दैट वे इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. So no one had anticipated this kind of I mean no one we knew that some kind of change will be there, but अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके पास उतना ही टाइम है। तो जैसे ही आपके बोर्ड खत्म हो, आप इमीडिएटली उसके बाद इन सब्जेक्ट के ऊपर काम कीजिए। Yes, it is necessary to have, Rajiv ji, it is necessary to have maths in class 12 to pursue BBA or BBE from Delhi University. Okay. Now, what should Samarth Jori ji,
सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है, बट एनडीए का एग्जामिनेशन मैंने एक बार देखा हुआ है, तो आई नो कि उसका एग्जामिनेशन और जो जनरल पेपर जो आपका है इसका सिमिलर पैटर्न ही होगा। तो आप जैसा आपका एनडीए का प्रिपरेशन है उसी में आपका कवर हो जाएगा जनरल टेस्ट का पेपर भी। सो दैट इज हाउ यू प्रिपेयर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि एनडीए के लिए और क्या रेफरेंसेस होते हैं। मेरा जो फोटे रहता है वो सिविल सर्विसेज का ही रहता है, where I help students to get through civil services, especially without coaching. मुझे कांटेक्ट करने के लिए दिस इज माय नंबर, सेंड टू माय नंबर ऑन द ग्रुप। बट आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप प्लीज डालिए अपने पूरा बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि आई एटलीस्ट गाइडेड 70 स्टूडेंट्स ऑन फॉर दी फॉर्म, एंड कम से कम 150 पेरेंट्स से मैं पिछले एक हफ्ते में बात करता हूँ, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा सा एक इशू रहता है, सिंस आई एम ऑल्सो टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी एंड आई हैव अनदर assignment coming up at Labasna for phase 1 of IAS in the next month. So I usually मुझे background पता होना चाहिए so that time का जो utilization हो थोड़ा सा ठीक से। Let me just yes, प्रगति students can change stream। साइंस स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए। एक साइंस का स्टूडेंट आज के डेट में पॉलिटिकल साइंस भी कर सकता है, हिस्ट्री भी कर सकता है, बट अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो और आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में। तो इसीलिए आपको अगर स्पेशली आप क्लास 11-12 में हो तो आई वुड सजेस्ट कि अपने, और आप ठीक ठाक हो स्टूडेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप लीजिए पीसीएम, बिकॉज उससे आपके ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपके अच्छे खुल जाते हैं। देयर इज नो मिनिमम फॉर मोनिका जी फॉर दिस। साइकोलॉजी के लिए अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लैंग्वेज लेना जरूरी है, और कोई भी आप 3 डोमेन ले सकते हैं फ्रॉम लिस्ट B1 या फिर 2 फ्रॉम B1 और 1 फ्रॉम B2। change his course, I don't think that is possible, Manoj, that you can change the course after first year. What the option might be there is कि आप शायद से वो जो डिप्लोमा वाला जो वो है सर्टिफिकेट वाला है वो आप लेके छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप नया कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और वैसे भी जो अब जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे, तो आप 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, तो उस तरीके से यू कैन प्रॉब्ली टेक अप। इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे, बट अभी अगेन दिस इज ऑल व्हाट हैज बीन देयर इन ऑन पेपर टिल नाउ। फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड जब ये पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा आई थिंक आई विल मेक अ न्यू पीपीटी फॉर दैट, and we can have another session on the pattern that will be followed from now on. PCMB student, general, BSc general, I would say आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट लीजिए, ऑनर्स सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि उससे आपके पास जो स्पेशलाइजेशन आ जाती है उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर हो जाती है। जनरल स्टूडेंट का एक जो रिगर होता है, जो कोर्स का रिगर, मेरा जो एक कंप्लेंट रहता है प्रोग्राम कोर्सेज के साथ वो ये है कि वो जस्टिस नहीं कर पाता है किसी भी कोर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स की बात करूँ, आप हमारे कोर्सेज के अंदर आप उसको इतना नहीं पढ़ा पा रहे हो कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्मा मैटर में जा सके, ठीक है, और आप सिर्फ एक माइल्ड टच दे रहे हो, और सिमिलरली आप उसको वो सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स ऑप्शन के साथ, क्योंकि वो इतना डेप्थ में नहीं गया। सिमिलरली बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ में भी वो इतना डेप्थ में नहीं गया कि उसने थ्योरीज अच्छे से पढ़ी। सो therefore I always recommend people to take up specialization courses rather than general courses, and the beauty of the new pattern is कि आप 2 सब्जेक्ट में कर सकते हो। आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट हो सकता है और एक माइनर सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप चूज कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज जो हुई है इसलिए जो नया प्रोग्राम आ रहा है उसमें क्या है कि वी कैन प्लान अप सब्जेक्ट कि आप फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, या अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है, जैसे अगर आपको डेटा में जाना है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हमारे पास 2-3 जीई पेपर्स होते हैं डेटा एनालिसिस का, जो वन ऑफ द पेपर्स व्हिच आई टीच इज, जिसमें हम आर प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ और जिसमें मैं एनालिटिक्स पढ़ाता हूँ। तो उसमें आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको डेटा साइंस के अंदर भी थोड़ा बहुत जाना है। अगर आपको से सिविल सर्विसेज करना है तो आप क्या कीजिए, आपने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से कुछ सब्जेक्ट लीजिए, फिर उसके बाद आप फिलोसफी से एक एथिक्स इन पब्लिक डोमेन सब्जेक्ट आता है वो ले लीजिए, और आप मैथमेटिक्स से कुछ सब्जेक्ट ले लीजिए, सो दैट आपका मैथ्स वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाए और आपके पास एक बैकअप ऑप्शन एमए इकोनॉमिक्स का भी आ जाए। तो अब ये वो टाइम चला गया जो हमारा वाला टाइम था कि अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लियर हो गया। अब आपको बहुत तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा अपना करियर,
बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। एंड अगर आप 4 साल में अपने आप को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना चाहते हैं ऑप्शन, एंड इमीडिएटली आप अपने करियर ऑप्शन, अब जो आपका करियर गोल है उसको अचीव, आई वुड से मैम जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी वाइज ऑप्शंस आपके आते रहेंगे। तो आप फॉर्म भर दीजिए। आई थिंक एक हफ्ता और आप वेट कर सकते हैं प्रोबेबली, एंड तब आप फॉर्म भर दीजिए। बट मुझे जो एक प्रॉब्लम हो सकता है आपकी हो जाए कि जो आपकी सिटीज भरेंगे आप, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास 4 सिटीज का ऑप्शन आता है। तो अगर आप दिल्ली भर रहे हैं तो दिल्ली में वो आपका ऑप्शन 1 देगा, बट हो सकता है दिल्ली में सेंटर खत्म हो जाए, तो हो सकता है फिर आपको गुड़गांव, नोएडा या फिर आपको गाजियाबाद में सेंटर में। तो आई थिंक एनटीए विल फोकस ऑन कि आपको अपने सिटी में ही मिल जाए, बट हो सकता है कि लेट भरने की वजह से हो सकता है वो सेंटर खत्म हो जाए। दैट कुड बी अ केस, बिकॉज ये यूपीएससी के साथ होता है। अगर आप एंड में फॉर्म भरते हैं तो आपका सेंटर जो होता है कई बार दिल्ली में नहीं मिलता। तो दैट माइट बी द केस। तो आप प्रॉब्ली एक वीक और का वेट कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंज करना होगा तो आप करेक्शन विंडो में चेंज। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, परसेंटाइल स्कोर क्या होता है? परसेंटाइल स्कोर होता है फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। आपके आपके जो स्टूडेंट है आपका उस पर मार्क्स आए 95, ठीक है, 95 मार्क्स आए, और 95 मार्क्स से नीचे 80% या और 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 स्टूडेंट्स ही हैं मान लीजिए। आपके आपके वार्ड क्या है? 95 मार्क्स। 20 बच्चों के मार्क्स 95 प्लस हैं 100 में से, ठीक है, और बाकी 80 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 95 से कम है। तो आपके वार्ड के जो परसेंटाइल आया वो 80th परसेंटाइल। हम इसमें देखते हैं कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं और कितने लोग आपसे नीचे हैं। बेसिकली हम देखते हैं कितने लोग आपसे नीचे हैं और टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया। अगर 1000 लोगों ने पेपर दिया और 1000 में से 800 जने आपसे नीचे हैं तो आपकी 80th परसेंटाइल है। और परसेंटाइल के बेसिस के ऊपर ही आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा प्रोबेबली। ये डिटेल यूनिवर्सिटी से आनी बाकी है, क्योंकि एनटीए सिर्फ स्कोर देगा, रॉ स्कोर और परसेंटाइल देगा। इसके बाद का जो मॉडलिटीज है वो हर यूनिवर्सिटी अपने आप देखेगी कि हम कैसे करें। तो वो हमारा नेक्स्ट पेज होगा। वी कैन आई पुट अप अ सेपरेट पीपीटी, आई प्रिपेयर अ सेपरेट डेक फॉर दैट, वेयर टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से आपके ये परसेंटाइल के बेसिस पे आपका कैसे काउंट होगी। Then Janvi's question, uh, what all are the possible career options after political science honors after civil services? You can go into research, you can go into IR, you can go into journalism. These are what I can think of. I'm not from political science background, but I have a lot of interest in that particular field. Therefore, these are the options that I know. पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, थिंक टैंक्स के साथ बहुत सारे हैं। देयर इज अ थिंक टैंक दैट आई एम एसोसिएटेड विद व्हिच इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसके लिए मैं कई बार आर्टिकल लिखता हूँ। तो ऐसे रिसर्च थिंक टैंक्स में कर सकते हैं आप, पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो दीज आर पॉसिबल ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। Teaching is an option. You can do masters and then a PhD and then get into teaching. Monica's question, merit decided. I am not sure कि अगर आपका मेरिट का टाई अप है तो किस बेसिस पे होगा। आई थिंक आई नीड टू सी दैट कि टाई के केस में क्या किस बेसिस पे टाई ब्रेकर होगा। देन पीसीएम स्टूडेंट एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में प्रगति जी, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स जरूरी है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, आपका लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, और पीसीएम ले लीजिए तो आप एलिजिबल है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी। देयर इज नो अदर रिक्वायरमेंट फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन की अकाउंटेंसी पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा होना चाहिए, बट मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी में से एक कंपल्सरी। व्हाट आर द ऑप्शंस that can be there for commerce students not having maths in class 12? यहाँ पर हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप टिपिकली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही ले सकते हैं उसके अंदर। साइंस सब्जेक्ट आपके लिए बाहर हो गए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स आपके लिए बाहर हो गया, बीबीई, बीबीए, बीएफआईए आपके लिए, बीबीए ये आपके लिए बाहर हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स कंपल्सरी है। तो आपके पास टिपिकल ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, राजीव जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में आपके पास टिपिकल सब्जेक्ट रह जाते हैं, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये सारे आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं। बट अगेन यू कैन देन थिंक ऑफ अदर ऑप्शन इन अदर यूनिवर्सिटीज। Ashwarya, in your case, I would say that you should go to the
CUET वेबसाइट एंड चेकआउट कि आपका कोर्स क्या है। ये आपका CUET की वेबसाइट है। यहाँ पर ये सिलेबस का टैब है, यहाँ पर सारे सिलेबस दे रखे हैं। आपको वो वर्ड टू वर्ड सिलेबस देखना होगा। हो सकता है सिलेबस NCERT से, हो सकता है क्लास 12 से ज्यादा हो। Recording जैसे मुझे stopped. बहुत सारे क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं मुझे वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो क्लास 11 का भी है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से आपको क्लास 11 का भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका कंपटीशन वो पढ़ रहा है। So that is how you should probably prepare for this particular. Any other question? So, sir, here we are done with our question and answer round. Okay. Thank you so much, sir, for joining us today by taking time out of a busy schedule and answering all our questions patiently. And to deliver the vote of thanks now, I would like to call Dr. Simrata Bindra, ma'am. Very good afternoon to everyone present. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry, can you hear me? Yes. Okay, great. A very good afternoon to everyone present. On behalf of IQAC MLNC, I would like to thank Dr. Siddharth Rathwar for sparing his valuable time and explaining the program-specific eligibility criteria, testing requirements, and exam structure of various streams under CUET 2022 in a detailed and simple manner. We hope that a lot of queries of all the students and parents present here have been addressed and solved. We would also like to thank all the participants for joining this session. We would like to look forward to holding many more such informative sessions in future. And thank you, sir, for sparing your time and addressing our queries. Thank you, Siddharth ji. Thank you, everyone.